मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इस बात की तरदीद कर दी कि मरकजी हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने में मदद के मामले में रियासतों के साथ इम्तियाज बरत रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि मुल्क में रेमडेसिविर की कोई किल्लत नहीं है। जून जून उसका स्टॉक मरकज को वसूल हो रहा है, वो रियासतों को उसकी ज़रूरत के एतबार से तकसीम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क को मौसूल बैरून इमदाद भी रियासतों को दरकार ज़रूरत की बुनियाद पर तकसीम की जा रही है। ఎవ్రీ వీక్ రివ్యూ చేసే విధంగా ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి వ్యాక్సిన్ కనుగొనేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. చివరకు ప్రధానమంత్రి గారే ప్రపంచంలో ఏ ప్రధానమంత్రి చేయని విధంగా వ్యాక్సిన్ పరిశోధన చేస్తున్నటువంటి పరిశ్రమల వద్దకి ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా వెళ్ళారు. అక్కడ ఉండేటువంటి సైంటిస్టులను, కార్మికులను, ఆ యొక్క ఫార్మా కంపెనీల మేనేజ్మెంట్లను స్వయంగా కలవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా భారత్ బయోటెక్ మన హైదరాబాద్ కు ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా వచ్చారు. అదేవిధంగా పూనా అయినటువంటి మహారాష్ట్ర పూనాలో సిరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కు కూడా స్వయంగా వారు వెళ్ళారు. అదేవిధంగా అహ్మదాబాద్ లో జైడాస్ కెడిలా లాంటి ఫార్మా కంపెనీ పరిశోధన కేంద్రాలకు కూడా ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా వెళ్లి ప్రోత్సాహం కల్పించారు. నిష్పక్షపాతంగా ప్రధానమంత్రి గారు అనేక ఫార్మా కంపెనీలతో విస్తృతంగా చర్చలు జరిపి ఈ వ్యాక్సిన్ కై టీకాకై పరిశోధనలు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున పూర్తి స్థాయిలో ప్రోత్సహించారు. ఈరోజు సంతోషం ఏంటంటే హైదరాబాద్ లోని భారత్ బయోటెక్ కోవాక్సిన్ ఏదైతున్నదో అది ఈరోజు ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత నాణ్యత కలిగినటువంటి మంచి ఫలితాలు ఇస్తున్నటువంటి మెడిసిన్ గా ఈరోజు తెలుగు వాళ్ళ సంబంధించినటువంటి కంపెనీలో కనుగొని ఈరోజు మరి అనేక రకాల ఈరోజు ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడుతూ ఉంది. మీకు అందరికి తెలుసు, భారత్ బయోటెక్ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ మనం క్లియరెన్స్ ఇచ్చినాం. కొంతమంది రాజకీయ పార్టీ నాయకులు మన రాహుల్ గాంధీ గారితో సహా ఇది మోడీ వ్యాక్సిన్, ఇది బీజేపీ వ్యాక్సిన్ అని విమర్శించిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాం. కోవిషీల్డ్ కానీ కోవాక్సిన్ కానీ రూపకల్పన చేసి మంచి ఫలితాలు ఈరోజు ఇస్తా ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోని 5-6 టీకాలు ఏవైతే ప్రపంచంలో ఉన్నాయో అందులో 2 టీకాలు అగ్రస్థానంలో మన దేశంలో ఉన్నాయని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాము. ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో 18 కోట్ల మందికి వ్యాక్సిన్ ఉచితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇవ్వడం జరిగింది. మన దేశానికి చెందినటువంటి మరికొన్ని ఫార్మా కంపెనీలు కూడా టీకాలపై వ్యాక్సిన్ కనుగొనేటువంటి విషయంలో చాలా వేగవంతంగా మరి ముందుకెళ్తా ఉన్నాయి. రష్యాకు చెందినటువంటి స్పుత్నిక్ టీకా కూడా మన హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీస్ తో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని మరి తయారు చేయడానికి కూడా అనుమతులు పొందడం జరిగింది. అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయ్యే లోపలనే ఆలస్యం చేయకుండా రష్యా నుంచి కూడా మనము ఈ యొక్క స్పుత్నిక్ టీకాను కూడా दारुसलाम सुबह 7 ता 9:30 काम करेगा। असदुद्दीन अवैसी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि तेलंगाना में रोजाना सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में नरमी रखी गई है, जिसकी वजह से AIMIM के तमाम MLAs व कॉरपोरेटर्स अवाम की शिकायत की सुनवाई और खिदमत के लिए रोजाना दारुसलाम पर सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक मौजूद रहेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि दारुसलाम के दरवाजे बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सब के लिए खुले रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहरियान हैदराबाद के लिए और तेलंगाना के अवाम के लिए पैगाम दे रहा हूँ, क्योंकि तेलंगाना में 22 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है और लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है। तो इसीलिए मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दारुसलाम में सुबह 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक तमाम अरकान असम्बली
अराकीन बल्दिया और सदर मुतमदीन दारुस्सलाम में बैठेंगे, आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपका कोई अहम काम हो जिससे आपको दारुस्सलाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जो मरकजी दफ्तर है, जो आप यहाँ पर आकर, हम यहाँ पर हैं, मैं हूँ, हमारे MLAs हैं, अराकीन बल्दिया हैं, अगर आपका कोई काम हो तो आप ज़रूर दारुस्सलाम को आ सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन जब नहीं था तो दारुस्सलाम के आवाम से मिलने का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर में 3 बजे का था। क्योंकि लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे है, तो आप सुबह 7 बजे से 9:30 के दरमियान में कभी दारुस्सलाम आकर आपके जो काम है, मसाइल हैं, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान दारुस्सलाम में मौजूद रहेंगे। शुक्रिया। हैदराबाद के कोतवाल अंजनी कुमार ने हफ्ते के रोज हैदराबाद में लॉकडाउन के चौथे दिन चार मीनार व अतराफ व अकनाफ के इलाकों का घोड़े पर दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, DCP साउथ जोन गुजराव भोपाल, DCP ट्रैफिक P करुणाकर के अलावा दीगर पुलिस अफसरान व रैपिड एक्शन फोर्स का अमला भी शरीक था। हैरत है, हैदराबाद के पुराने शहर के पुरअमन फिजा में जहां लॉकडाउन की भरपूर पाबंदी की जा रही है, वहां अचानक रैपिड एक्शन फोर्स की क्या जरूरत पड़ गई। हाईकोर्ट के काबिल तरीन जज विजय सेन रेड्डी के कहने पर मक्का मस्जिद में ईद की नमाज की फिल्मबंदी भी की गई। हालांकि चार मीनार के बाजू गैर कानूनी मंदिर में पूजा पर हुक्काम आंख बंद किए बैठे हैं। आखिर हुकूमत चाहती क्या है? और अंजनी कुमार की फ्रेंडली पुलिस और फिर रैपिड एक्शन फोर्स। पहले तो मैं आप सब लोगों की जानिब से ओल्ड सिटी और हैदराबाद सिटी पूरी आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि कितने बेहतरीन तरीके से सभी गाइडलाइंस को मानते हुए और एक जो जिम्मेदार हमारा शहर है उसके तरीके से कल उन्होंने ईद मनाई। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया, कहीं पे भी कोई गैदरिंग नहीं हुई। तो जो एक सेल्फ डिसिप्लिन और ईद का जो माहौल में दिखाया गया उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी जो लॉकडाउन है उसके बारे में आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे तमाम हैदराबाद के शहरी और ख़ास तौर से ओल्ड सिटी के शहरी भी बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के इसकी जो बात है, जो एक वजह है उसकी, उस वजूहात को अच्छी तरह से समझते हुए और कोविड से हमको हमारे शहर को बचाना है, इस बात को पूरी तवज्जो देते हुए खुद से आगे आके पूरे के पूरे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी छोटा मोटा वायलेशन मिलता है वहाँ हम जाके समझा रहे हैं। अभी आपने देखा हमारे CP साहब भी और बाकी सब लोग भी, एक माउंटेड पुलिस से भी एक राउंड लिया गया। तो आप देख रहे हैं चार मीनार में जो बिजी रहता था वो काफ़ी अभी इस वक्त सभी शहरी यहाँ पे नहीं है और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। तो मैं फिर एक बार पब्लिक से उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से लॉकडाउन के पूरे नियमों का पालन करते हुए, उनको देखते हुए और इसको कोरोना को हम सबको मिलकर डिफीट करना। देखिए ऐसा कोई नहीं है। पहली बात तो ये सेंट्रल प्लेस है, ठीक है, सेंट्रल प्लेस है। और दूसरी बात यह है कि एक सिंबॉलिक यहाँ पे है, इसलिए अगर यहाँ पे भी आज ये हुआ तो उसका कोई वजह यही है कि जनरली एक बार राउंड मारने के बाद में या राउंड स्टार्ट करने के बाद में ऑफिसर्स यहाँ से करते हैं। ऐसा कुछ आपको अगर अंदाज़ा हो, बहादुरपुरा, काला पत्थर, शालीबंडा, पुराने शहर का कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे मैं खुद नहीं गया। शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप वहाँ पे जाके पता कीजिए। हम DCP साहब पूरे के पूरे गलियों और वहाँ पे सब जगह गए हैं। बहादुरपुरा के जंक्शन पे खड़े हुए, उसके बाद शालीबंडा में पूरा रूट भी बताता हूँ आपको, राइट अप टू कंचनबाग, तो उस पूरे एरिया में गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ जब आते हैं तो आपको इत्तला मिल जाती है, तो यहाँ पहले मालूम पड़ जाता है, अदरवाइज सब जगह घूम रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारजा सदर और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल पर यूथ कांग्रेस के मुफ्त लंच प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम के तहत 1000 से ज्यादा गांधी हॉस्पिटल के स्टाफ, बीमारों और तीमारदारों को दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत हुकूमत कोरोना वायरस की पहली लहर और अब दूसरी लहर के दौरान मुतासरीन की मदद के लिए आगे आने से खासी रही है। गांधी हॉस्पिटल को जो बुनियादी सहूलतों की जरूरत थी वो अब तक फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और नर्सों के लिए लंच का तक इंतजाम नहीं है, चुनाचे यूथ कांग्रेस को आगे आना पड़ा। भुवनगिर के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि रियासती असेंबली में KCR ने कोरोना वायरस को आरोग्य श्रेणी में शामिल करने का ऐलान किया था, लेकिन उस पर अब तक अमल नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से मुतालिक
रियासती हुकूमत ने जो टास्क फोर्स तश्कील दी है उसका सदरनशीन चीफ मिनिस्टर ने खुद अपने बेटे को बना दिया है। सेहत की जिम्मेदारी हालांकि एक अलहदा वजीर को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल और रोजाना की असास पर उसका जायजा लेने के लिए एक अलहदा मिनिस्टर होना जरूरी है ताकि सरकारी मिशनरी को मुतहरिक किया जा सके। रचाकोंडा पुलिस ने सिक्योरिटी काउंसिल, DRDVO और लायंस क्लब के इश्तराक व ताउन से ऑक्सीजन बैंक कायम किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने इसका इफ्तिताह किया और बताया कि प्लाज्मा के अतिये के लिए भी बहुत जल्द एक वेबसाइट शुरू की जाएगी और एक मुख्तसर फिल्म भी तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी खतरनाक है, चुनाचे रचाकोंडा पुलिस ने घरों में आइसोलेशन में रहने वालों और ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान लोगों की मदद करने के लिए ये काम शुरू किया है। ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ అది ఈ ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ కి భాగంగా ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ తర్వాత మన పోలీస్ వాళ్ళ కోసం ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్ ఈ రెండు కూడా మనం ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ వేవ్ కోవిడ్ ఎట్లా చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయినారు. ఈ ఆక్సిజన్ కొరత ఉంది. తర్వాత హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసిన ముందు డాక్టర్ అడుగుతారు మీ ఇంట్లో ఆక్సిజన్ రెడీ ఉందా, ఆక్సిజన్ ఉంటే మీకు డిశ్చార్జ్ చేస్తారు అని. సో ఆ పరిస్థితిలో చాలామంది ఇది ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కావచ్చు, ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ కోసం వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ కొరత ఉన్న వలన అది దొరకట్లేదు. సో ఈ పరిస్థితిలో ఈ క్రిటికల్ పేషెంట్స్ ఎవరికి ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో ఇంకా పెట్టడం అది ఇష్టం లేవు, వాళ్ళ ఇంట్లో క్వారంటైన్ చేయాలా, నెగిటివ్ వచ్చినాయి మాత్రమే ఆక్సిజన్ ఇంకా అవసరం ఉంది, ఇంట్లో వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ సప్లై కంటిన్యూ చేయాలి, అలాంటి పేషెంట్స్కి హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఇనిషియేటివ్ ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేశాము. సో ఈ ఇనిషియేటివ్కి భాగంగా ఎవరు నీడీ పేషెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం మా కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 9490617234, ఐ రిపీట్ 9490617234. ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే చాలు. ఈ వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెడితే ప్రోఫార్మా ఉంటుంది, ఆ ప్రోఫార్మా ఫిలప్ చేయండి. కొన్ని డాక్యుమెంట్ అవసరం ఉంది, ఆ డాక్యుమెంట్ అని వేస్తే మా సిబ్బంది సిలిండర్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. కొన్ని పీరియడ్ మనం ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. ఆ పీరియడ్ వరకు ఆ సిలిండర్ వాళ్ళకి మనం ఇస్తున్నాము. ఆ పీరియడ్ తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటే ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తారు, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి గివన్ టు అనదర్ పేషెంట్. ఈ సిలిండర్ ఎవరికి అవసరాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్, రిపోర్ట్స్, ఆధార్ కార్డ్, ఇవి మినిమం డాక్యుమెంట్స్ మనకి అవసరాలు ఉన్నాయి. ఈ రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తర్వాత మన పోలీస్ స్టార్ట్ చేసిన ఇనిషియేటివ్. ఈ స్పాన్సర్స్ ఎవరెవరు ఈ ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ కోసం ముందుకు వచ్చారు, ఆ స్పాన్సర్స్కి మా పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున, మా సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తరఫున ధన్యవాదాలు. ఈ స్పాన్సర్ దాంట్లో లయన్స్ క్లబ్ వారు, తర్వాత మన హెచ్ ఫౌండేషన్, సెకండ్ ఛాన్స్ హోమ్ అండ్ మన DRDO తరఫున రమేష్ కెంచే గారు, వాళ్ళ అందరికీ నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్. कोरोना वायरस की लहर के फैलने के बाद शहर में डॉक्टरों के खानगी क्लिनिक पर मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। मामूली बुखार और जुकाम के लिए भी लोग मोहल्ले के खानगी क्लिनिक से रुजू हो रहे हैं और डॉक्टरों को घरों पर भी तलब किया जा रहा है। किंग्स कॉलोनी शास्त्रीपुरम के डॉक्टर मोहम्मद जमीरुद्दीन ने बताया कि वो रोजाना औसतन 11 मरीजों का घर जाकर मुआयना कर रहे हैं जो कोरोना वायरस का इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं। मरीजों के अफराद खानदान उन्हें जो हौसला और हिम्मत दिला रहे हैं उसकी अहम वजह यह भी है अच्छी ग़िज़ा और दवा भी सेहतयाबी की जमानत है। मच्छर के शद्दवियात के बड़े पैमाने पर छिड़काव के नतीजे में GHMC ने दावा किया है कि शहर में जारिया मौसम में डेंगू और मलेरिया के केसेस में जबरदस्त कमी हुई है। इस साल जनवरी से अब तक मलेरिया के सिर्फ 39 केसेस सामने आए, जबकि गुज़िश्ता साल माह जनवरी से माह मई के दरमियान 50 केसेस रिपोर्ट हुए थे।
हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट की सफाई के प्रोग्राम का भी अच्छा असर पड़ा है। 16 मई को यौम कौमी इमदाद डेंगू की मुनासिबत से जीएमसी ने आवाम से अपील की कि वो हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट की सफाई का प्रोग्राम जारी रखें। बल्दिया ने बताया कि मच्छरकश अद्वियात का घर घर छिड़काव किया जा रहा है और रोजाना 1 लाख घरों का अहाता किया जा रहा है। हसन नगर में ईद के दिन नौजवान पर हुआ जानलेवा हमला। तफसीलात के मुताबिक हसन नगर के रहने वाले इमरान, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, आज उनके कुछ दोस्तों ने उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें इमरान जख्मी हो गए। जख्मी इमरान को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। बाद अज़ां राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इमरान के एक दोस्त जो उन पर हमले के वक्त मुकाम में वारदात पर मौजूद थे, उन्होंने बताया ये तफसीलात। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे दोस्त के ऊपर अटैक हुआ। कहाँ पे हुआ? इंदिरा नगर में। हम लोग वहाँ बैठे हुए थे थोड़ा ऐसी फ्रेंडली में, तो अचानक अटैक हो गया। कहीं के लिए अटैक चाकू हुआ? पड़ी। कहीं के लिए? ऐसे फ्रेंडली बैठे हुए थे। फ्रेंडली बैठे हुए टाइम पे फ्रेंडली में बहस में बात में बहस हो गई। कहीं? अच्छा, बात में बहस हो गई। बहस में ऊपर अटैक हो गया और चाकुआ निकल गए। कौन मारे? उसके साथ में जो दोस्तान थे वो लोग उठा के चाकुओं से मार दिए। पीठ में पड़ गया, वार बहुत हो गया। जिसको मार लगा उनका नाम क्या है? शेख इमरान नाम है उनका। कौन से एरिया में? हसन नगर में रहते हैं उन्होंने। उस्मानिया हॉस्पिटल में अब है और सीरियस है बोल के बोल रहे। डॉक्टर भी बहुत से बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उनकी जान बच जाना है। आप कौन होना उनके? मैं उनका एक दोस्त हूँ। आप साथ में थे जब? आप साथ में थे ना? मैं साथ में था, मेरे साथ में और एक 4 दोस्तान थे जो अंदर है पूरे। आप लोग आए बोल के मैं आपके लोगों के लिए बाहर आया। कंप्लेन हो गई ना? कंप्लेंट दी है। कौन सा पीएस लगा आपको? कंप्लेंट कराए राजनगर पीएस में कंप्लेंट कराए। राजेंद्र नगर पीएस? जी हो। ये आप वालिद हैं उनके? ये वालिद है साहब है इनके। अच्छा। राजनगर पीएस में कंप्लेंट करा दिए ऑलरेडी। ये राजनगर पीएस से इधर भेजा है हम लोगों को। ये झगड़े की वजह क्या है? असल वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं है, बैठे हुए थे, बात में वैसी दोस्ताने में बहस हो गई। नहीं, हमारे साथ कुछ नशे वगैरह में थे क्या वो लोग मारने वाले? हाँ, वो लोग तो नशे में थे, लोग बोल रहे थे। क्या नशा करते वो लोग? गांजा वांजा पीते थे वो लोग। हाँ, नशे में थे। तो आप साथ में थे ना? आपको नहीं मालूम? हम नहीं, मैं उस टाइम पे साथ में नहीं था। जब लड़ाई हुई तो 1-2 मिनट पहले मैं आया। आने के बाद में मालूम हुआ कि बैठे के साथ में, उसके बाद में लड़ेगी। किधर मार लगे उनको? नशे में थे बोल के। मार किधर पड़ा? जी, वार किधर हुआ? पीठ पे वार हुआ और पीठ पे पूरा फट गया, तकरीबन इतना हिस्सा फट गया। अभी डॉक्टर देख रहे, अभी तो कुछ भी नहीं बोले और किसी को अंदर आने भी नहीं दे रहे, देखेंगे बोल के बोले। आपको पुलिस ने आपका हेल्प किया अभी? अभी तो पुलिस से जवान को भेजा है, देख रहे, उन्होंने लिख रहे, कर रहे। अच्छा, अब क्या है, अल्लाह मालिक है हमारा दोस्त के। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैयद आमिर खादरी है। और पेशेंट का? सही शेख इमरान नाम है। शेख इमरान। क्या एज है उनकी? 27 है। 27? जी हो, 27 एज है। ऑटो ड्राइवर है उन्होंने। पेशे से ऑटो चलाते हैं? जी हो, ऑटो ड्राइवर है। 4 बच्चे हैं उनको, छोटे बच्चे हैं। अभी नो ऐसा घर में रहे तो बच्चों का भाडोला हो जाता। कमाने करने वाले कोई भी नहीं है उनके घर में। एक तो घर से भी अलग है और कोई देने वाले भी नहीं है उनको। उन्होंने खुद कमाना, उन्होंने खुद करना है। घर के 3-4 महीने के किराए भी बाकी हैं उनके खुद के घर के। अब अल्लाह ऐसा ये टाइम ला लिया उनका। अब अल्लाह मालिक है, अब क्या कर सकते हैं उनको। अल्लाह ही कुछ रहम करे उनको। ये कितने बजे का वाक़या है बेटा? ये करीब 3:30-4 बजे का वाक़या है साहब, दिन का। दिन में 3:30-4? हमारे साथ ही पढ़े, उन्होंने नमाज़ पढ़ के घर को गए, खाना वाना खा लिए। खाना वाना खा ले के आए, आके फ़ोन करे थे मेरे को। मैं गया से। इन्हों भी नशा वशा करते क्या? इन्हों कभी करते साहब। गांजे का? नहीं, गांजा तो नहीं पीते इन्हों। कभी ऑयल कोयल नशा करते हैं, ऑयल कोयल यूज़ करते और कभी करते, बस ऐसा रेगुलर नहीं है। और रमज़ान में तो बिल्कुल भी नहीं करते, 40 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। नमाज़ों की पाबंदी और रोज़े की पाबंदी करते हैं ना, बिल्कुल। कभी तो मतलब आप रमज़ान ख़त्म हो गया, आज ईद है बोल के कुछ शौक ज़ौक में थे क्या? हाँ, ऐसा उनके कोई फ्रेंड्स फ़ोन करके उनको बुलाए कि हाँ भाई आज ईद हो गई। और 2 नमाज़ा हो गए, एक तो ईद की नमाज़ और एक तो जुम्मे की नमाज़ हो गई थी। इस टाइम पे डबल खुतबा हो गया था कि हाँ भाई बैठेंगे करेंगे बोल के। कोई तो आप भी बैठे थे उनके साथ में? मैं बाद में गया था। तो आप भी नशा किए? कि नहीं, मैं तो बाद में गया था। मैं गया जब लड़ाई स्टार्ट हो गई। हो गया था मतलब सब? मैं गया जब थोड़ा बहुत ऐसी बहस चल रही थी, जब मैं गया उसके बाद में रेस ज़्यादा हो गया था। अच्छा, ठीक। उसके बाद में रेस ज़्यादा हो गया था। फिर बाद में मालूम हुआ कि वो लोग नशा करते, वो करते, ये करते बोले। ठीक है।
ओके। मलकाजगिरी की एसओटी ने नाचाराम में एक 33 साल शख्स प्रसाद गौड़ को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि वह 3,490 का इंजेक्शन 28,000 रुपए में फरोख्त कर रहा था। बच्चूपल्ली पुलिस ने रातों में गाड़ियों को रोककर ठग लेने वाले 6 रैजनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से 11 मोबाइल फोन, 2 बाइक्स और कुछ नकद रकम भी बरामद की है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस कोकटपल्ली सुरेंद्र राव ने मीडिया को बताया कि ये रैजन बच्चूपल्ली, जड़ीमटला, बुलारम और बंजारा हिल्स के अलावा जगाधरी गुट्टे में जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज को निशाना बनाया करते थे। జూబ్లీ హిల్స్లోని ఫిలిం నగర్ దగ్గర గల ఇందిరా నగర్లో నివాసం ఉండే మన వినయ్, మహేష్, దిలీప్, విజయ్, మణిదీప్, అర్జున్ మరియు ఇంకొక 4 వ్యక్తులు, యువకులు అందరూ కూడా ఒక 2 ముఠాలుగా ఏర్పడి వీరందరి యొక్క వయస్సు 20 నుంచి 20 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. వీరు ఈ జొమాటో, స్విగ్గీ మనకు డెలివరీ బాయ్స్గా పనిచేస్తున్నారు. ఇంకా కొద్దిమంది ఆఫీసులలో ఆఫీస్ బాయ్స్గా పనిచేస్తూ సాయంత్రం పూట అందరూ ఒకడ చేరి ఒక 2 ముఠాలుగా ఏర్పడి 2 మోటార్ సైకిళ్ళ మీద సిటీలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేస్తూ ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల నుంచి, రోడ్ సైడ్ ఒంటరిగా నడుస్తున్న వ్యక్తుల నుంచి సాయంత్రం 8:30 నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు వారిని విచక్షణ రహితంగా కర్రలతోటి, తర్వాత రాళ్లతోటి, తర్వాత చేతులు ఉన్నటువంటి హెల్మెట్తోని విచక్షణ రహితంగా కొట్టి వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి సెల్ ఫోను, నగదును దొంగతనం చేసి వాటిని మరునాడు OLXలో అమ్మకానికి పెట్టేసి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. ఈ విధంగా వీరు గత 8 నెలల నుంచి బాచుపల్లిలో ఒక 5 కేసులు, జగదిగుట్ట, జీడిమెట్ల, బొల్లారము, సంగారెడ్డి జిల్లా బొల్లారము, బంజారా హిల్స్, దుందిగల్ PS పరిధిలలో మొత్తం 10 దొంగతనాలకు పాల్పడ్డారు. అందులో గాను వారిలో మనము నిన్న సాయంత్రం 4 గంటలకు 6 వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అరెస్ట్ చేసి 11 సెల్ ఫోన్లు, వారు నేరానికి ఉపయోగించినటువంటి 2 మోటార్ సైకిళ్ళు, అదేవిధంగా ఒక 1,800 రూపాయల నగదుని కూడా మనం స్వాధీనం పరచుకోవడం జరిగింది. వారందరినీ కూడా ఈరోజు మనకు కన్సర్న్ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టి అక్కడి నుంచి వారిని మనకు జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపించడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడంలో, కేసులు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడంలో చాలా చక్కగా పనిచేసినటువంటి మన నరసింహారెడ్డి గారు, వారి క్రైమ్ SI రాజు యాదవ్, వారి క్రైమ్ టీం అందరినీ కూడా అభినందిస్తాం. తగిన రివార్డ్స్ కూడా సిఫార్సు చేయడం జరుగుతుంది. లేదు, రెక్కీలాగా ఏం కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రతిరోజు చాలాసార్లు తిరుగుతారు కాబట్టి అదే రెక్కీలాగా కూడా మనకు వస్తుంది. ఒకసారి వాళ్ళు సక్సెస్ కాకుండా కూడా రెక్కీలాగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఎవరైతే రోడ్ సైడ్ ఒంటరిగా, తర్వాత ఎవరు నిర్మాషణ ప్రాంతంలో నడుచుకుంటూ పోతుందో వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళ యొక్క మెయిన్ ఏంటంటే వాళ్ళ అవతల భయభ్రాంతులకు గురి చేయటము, వాటి విచక్షణ రహితంగా కొట్టడము, వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఫోను అయ్యి డబ్బులు గుంజుకోవటము, ఆ విధంగా వీరు చేస్తున్నారు. వీరందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. 6 మిగతా 4 కూడా మనకు వేరే పోలీస్ స్టేషన్లో అవసరం ఉన్నది. వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకుంటారు. ఫోన్లో అమ్మేశారా సార్ వాళ్ళ దగ్గర? ఫోన్లు ఏమంటే అమ్మేసారు, అన్నీ అమ్మేసారు. ఇవన్నీ మనం రికవర్ చేసినాయి. OLXలో అమ్మిని రికవర్ చేసినాయి. ఇవన్నీ మైనర్లు ఎవరు ఉన్నారు సార్? లేవు, మైనర్లు ఎవరు 20 నుంచి 25 సంవత్సరాల మొత్తం యువకులు. మొత్తం వీళ్ళ మీద డెకాయిటీ కేసులైనాయి, అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసులైనాయి, రాబరీ కేసులైనాయి, ఎక్స్టార్షన్ కేసులైనాయి వివిధ ప్రాంతాలలో. అంటే ఇంతకుముందు కూడా నేర చరిత్ర ఉందా? ఇప్పుడే కొత్తగా సార్ ఇది ఫస్ట్ టైము వీళ్ళు చేయడం కూడా ఫస్ట్ టైం. అంటే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు, 8 నెలల నుంచి కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. వీరు ఎన్నుకునేది ఏంటంటే సెల్ ఫోన్లు, నగదు పెట్టి క్యాష్ కాబట్టి అంత వాళ్ళ దృష్టికి రాలేదు. ఇప్పుడు వచ్చినారు, వీళ్ళ మీద కట్టి నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది. వీళ్ళందరి మీద సస్పెక్ట్ షీట్స్ ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకి 8 కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి అందరి మీద కూడా మనం PD యాక్ట్కు ప్రపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సీరియస్ అఫెన్సెస్ ఉంది. तेलंगाना में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 4,305 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद अब 5,20,709 तक जा पहुंची है। इसी मुद्दत के दौरान 29 नई अमवात भी हुई हैं। महकमे सेहत के प्रेस नोट में बताया गया है कि जुमेरात और जुमे को 57,416 कोविड-19 टेस्ट किए गए। रियासत में सेहतयाब होने वालों की शरह 88.51% बताई जाती है।
मरकज की जानिब से कोविड-19 की तीसरी लहर आने से मुतालिक अलर्ट जारी करने के बाद पूरे मुल्क में एक खौफ और दहशत का माहौल बन चुका है। मरकज ने बताया कि इस लहर से बच्चियों और नौजवानों की ज्यादा तादाद मुतासिर होगी और उन्हें ज्यादा खतरा लाक है। हुकूमत महाराष्ट्र ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 के खुसूसी वार्ड कायम किए हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा खित्ते में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,524 नए केसेस सामने आए हैं और 128 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। सेहत अफसरान ने हफ्ते के रोज इत्तला दी। तफसीलात के मुताबिक खित्ते के 8 अजला में से जिला औरंगाबाद सबसे ज़्यादा मुतासिर था। यहाँ कोरोना के 665 नए केसेस सामने आए और 33 अफराद की मौत हो गई। इसके बाद लातूर में 560 नए केसेस दर्ज किए गए और 30 अफराद की मौत हुई, जबकि परभनी में 458 अफराद की मुतासिर होने की तस्दीक हुई और 16 मरीज हलाक हुए हैं। जिला उस्मानाबाद में 458 नए केसेस सामने आए और 15 मरीजों की मौत हुई। जालना में 985 नए केसेस हुए हैं, 5 अफराद की मौत और हिंगोली में 78 नए केसेस दर्ज किए, जबकि 5 मुतासिरीन की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर मगरबी बंगाल में 16 मई से 2 हफ्तों का लॉकडाउन नाफिज कर दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कलकत्ता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के इस इक़दाम का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि तमाम तालीमी इदारे दफातर बंद रहेंगे। कलकत्ता मेट्रो सर्विस भी मजदूद रहेगी। उन्होंने बताया कि सिर्फ हंगामी खिदमत अंजाम देने वाले इदारों को लॉकडाउन से इस्तिस्ना दिया गया है। यहाँ यह बताना जरूरी हुआ कि मुल्क के 12 से ज्यादा रियासतों में लॉकडाउन नाफिज किया जा चुका है। बहरी अरब में हवा के दबाव में कमी के पास आने वाला तूफान ताउक्टे 16 मई से आइंदा 4 दिनों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और केरला से टकराएगा। महकमे मौसमियत ने मुंबई और थाने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस तूफान के नतीजे में मुल्क के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश का इम्कान है। मरकजी और रियासती हुकूमत ने इस तूफान से निपटने के लिए सख्त तरीन इकदाम किए हैं। मुतासरा इलाकों से शहरियों का तखलिया करवाया जाएगा। हिंदुस्तान के नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि माशरे की बुनियाद खानदान है और उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। नायडू ने हफ्ते के रोज़ आलमी योम ख़ानदान के मौके पर जारी एक पैगाम में कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि माशरे की बुनियाद खानदान है। खानदान हर हाल में इंसान का साथ देता है और ख़ानदान के अफराद एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस काबिल कदर इदारे को मजबूत करना चाहिए। नायडू ने कहा, आज आलमी योम ख़ानदान है। ख़ानदान ही हमारे माशरे की बुनियाद है जो हर हाल में हमें सहारा देता है। वबा के इस दौर में कई ख़ानदान ने अपनों को खोया है, उन्हें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। वासुदेव कुटुंबम के सनातन दर्ज के मुताबिक आगे बढ़कर उन खानदानों की मदद करना चाहिए। हिंदुस्तान में हफ्ते को कोरोना वायरस के केसेस में कुछ कमी देखी गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के 3,26,098 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 3,890 अफराद फौत हुए। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि मुल्क में गुज़िश्ता 23 दिन से रोजाना औसतन 3 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं और मरने वालों की तादाद भी 3,000 के ऊपर जा रही है। चारशंबे को एक ही दिन में 4,205 अमवात हुई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। कोरोना वायरस की लहर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है और अब तक 16,54,08,671 अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं। अमेरिकन जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ने बताया कि इस मर्ज से 3,35,00,000 से ज्यादा अफराद फौत हुए हैं। अमेरिका में जो सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जुमला 32,84,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, तो वहीं 5,85,224 अमवात भी हुई हैं। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it.
Success, finding oneself.